In a dense forest, many animals live together. Deer, elephants, monkey, bears, and rabbits. They all respected one another and celebrated festivals together. A small group of rabbits lived in the eastern part of the forest. Among them, the smartest was Chiku. Not only was Chiku intelligent, but his cleverness was famous throughout the jungle. One day, a fierce lion entered the jungle. He was cruel and hunted one animal every day. Fear gripped all the animals. A meeting was called on all the animals decided that each day one animal would go to the lion willingly so he could not kill others. Tough, resolute, they agreed as they saw no other way to survive. After a few days, it was the rabbit's turn. All the rabbits were terrified. Who will go? They wondered. Chiku stepped forward and said, I will go, but I will meet the lion in a different way. The other rabbits were surprised but trusted Chiku's intelligence. He devised a clever plan. He knew that defeating the lion in a fight was impossible, but he could certainly win a battle of wits. Chiku knew the lion lived in a cave near the river. Instead of going directly, he delayed his journey, taking his time. By the time he reached the lion, it was quite late. The lion roared in anger. Why are you so late? Chiku calmly replied, Your Majesty, I was on time, but another lion stopped me on the way. He claimed that he was the real king of the jungle. The lion was furious. Who is he? Where is this other lion? Chiku replied, He is in a nearby cave. I told him that you are the real king, but he refused to believe me. The lion, now burning with rage, demanded to be taken to this so-called king. Chiku led the lion to a dry well where water still remained at the bottom, creating clear reflection. Pointing at the well, Chiku said, Your Majesty, there is he is hidden inside. The lion looked into the well and saw his own reflection in the water. Thinking it was another lion, he roared in anger. Furious, the lion jumped into the well to attack his reflection, but drowned in the deep water. With the lion gone, the jungle was filled with joy. All the animals praised Chiku for his bravery and intelligence. They no longer had to fear being hunted. The rabbits declared Chiku the hero of the jungle. बहुत घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। हिरण, हाथी, बंदर, भालू और खरगोश सभी मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवर एक दूसरे का सम्मान करते थे और मिलकर त्योहार मनाते थे। खरगोशों का एक छोटा सा समूह जंगल के पूर्वी हिस्से में रहता था। उनमें से सबसे चतुर खरगोश था चीकू। चीकू न केवल समझदार था बल्कि उसकी चतुराई के किस्से पूरे जंगल में मशहूर थे। एक दिन अचानक जंगल में एक भयंकर शेर आ गया। वो बहुत क्रूर था और हर दिन एक जानवर का शिकार करता था। डर के मारे सभी जानवर सहमे हुए थे। जंगल में एक सभा बुलाई गई। सबने मिलकर तय किया कि हर दिन एक जानवर खुद शेर के पास जाएगा ताकि वो बाकी जानवरों को ना मार सके। सबने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी क्योंकि उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद खरगोश की बारी आई। सभी खरगोश बहुत घबरा गए।
हम में से कौन जाएगा? सब सोच में पड़ गए। तभी चीकू आगे आ गया और बोला, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं शेर से कुछ अलग तरीके से मिलूंगा। सभी खरगोश हैरान थे, लेकिन चीकू की चतुराई पर उन्हें भरोसा था। चीकू ने एक चालाक योजना बनाई। वो जानता था कि सीधी टक्कर में शेर से जीतना नामुमकिन था, लेकिन दिमाग की लड़ाई में वो अवश्य जीत सकता था। चीकू जानता था कि शेर नदी के पास एक गुफा में रहता है। चीकू देर से चला और रास्ते में रुकते रुकते शेर के पास बहुत देरी से पहुंचा। शेर बहुत गुस्से में था और बोला, तू इतनी देर से क्यों आया? शेर ने दहाड़ते हुए पूछा। चीकू ने बड़े ही शांत स्वभाव से उत्तर दिया, महाराज, मैं समय पर आ गया था, लेकिन रास्ते में मुझे एक और खरगोश मिला। उसने कहा कि वो जंगल का राजा है और उसने मुझे रोक लिया। शेर भड़क उठा, कौन है वो? कहाँ है वो दूसरा शेर? चीकू ने बोला, महाराज, वो तो पास ही एक गुफा में है। मैंने कहा कि असली राजा तो हमारे शेर महाराज हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। शेर आग बबूला हो गया। वो चीकू के साथ चल पड़ा उस काल्पनिक शेर से मिलने के लिए। चीकू शेर को पास ही एक बड़ी सी सूखी झील के पास ले गया, जहाँ पानी अब भी जमा हुआ था। उसमें साफ परछाइयाँ दिखती थी। चीकू बोला, महाराज, वो रहा दूसरा शेर, झील के अंदर छिपा है। शेर ने जब पानी में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। वो समझा कि वो दूसरा शेर है। गुस्से में शेर ने झील में छलांग लगा दी और गहरे पानी में डूब गया। जब शेर मारा गया तो पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी जानवर चीकू की बहादुरी और चतुराई की तारीफ करने लगे। अब उन्हें किसी शिकार का डर नहीं था। खरगोश ने चीकू को जंगल का हीरो घोषित कर दिया और हर साल उसका सम्मान मनाया जाने लगा। Once upon a time, at the edge of a forest, there was a little girl who lived with her mother in a small village. The villagers called her Little Red Riding Hood because she was always wore a red hooded cloak that her grandmother had gifted her on her last birthday. One day, her mother received news that Little Red Riding Hood's grandmother was unwell. She quickly prepared some hot soup and packed some food. Then she called Little Red Riding Hood and said, "My dear child, take this basket of food to your grandmother. Go straight to her house and do not talk to any strangers on the way." Little Red Riding Hood assured her mother that she would go directly to her grandmother's house and return by evening. Wearing her favorite hooded coat, she picked up the basket and set off on her journey. She skipped and danced as she walked toward her grandmother's house. As she entered the forest, a cunning wolf hiding behind the bushes saw her. His mouth watered at the sight of her and the delicious food in the basket. The wolf decided to trick her, so he called out, "Hello, little girl, where are you going?" Little Red Riding Hood was startled to see the wolf, but hesitantly replied, "I am going to my grandmother's house. She is sick and I am taking her some soup and food." The wolf thought, why not eat the grandmother first and then the little girl too? Pretending to be friendly, he said, "Oh, what a kind girl you are, but would not your grandmother love some beautiful flowers?
why don't you pick some flowers for her on the way? Little Red Riding Hood liked the idea and started picking flowers in the forest. Meanwhile, the White Wolf ran straight to her grandmother's house. He knocked on the door. When the grandmother opened it, he quickly swallowed her whole. Then he wore her scarf, wrapped himself in a blanket, and lay in bed pretending to be her. A little later, Riding Hood arrived at her grandmother's house. The door was slightly open and she walked in. She saw her grandmother lying in bed and asked, "Grandmother, how are you feeling now?" "I am fine, my dear," the wolf replied in a deep voice. Little Red Riding Hood was surprised by the unusual voice and asked, "Grandmother, why is your voice so deep?" The wolf replied, "It is because I am happy to see you, dear." As she got closer, she noticed something strange. "Grandmother, why are your ears so big?" "So that I can hear you better, my child," said the wolf. "Grandmother, why are your eyes so big?" "That I can see you better, my dear," he replied. "Grandmother, why is your mouth so big?" "So that I can eat you better." The wolf roared and punched on her. Little Riding Hood screamed, but the wolf swallowed her whole just like her grandmother. After eating, the wolf lay on the bed and soon fell asleep. Fortunately, a woodcutter was passing by the house and heard Little Red Riding Hood screams. He rushed inside and saw the wolf sleeping with the woolen belly. Suspecting what had happened, he took his axe and carefully cut open the wolf's stomach. Out came Little Red Riding Hood and her grandmother unharmed. The woodcutter then filled the wolf's stomach with heavy stones and stitched it up. When the wolf woke up, he felt extremely thirsty and went to the river to drink water. But because of the weight of the stones, he lost balance and fell into the river, drowning forever. Little Red Riding Hood and her grandmother thanked the brave woodcutter for saving their lives. On her way back home, Little Red Riding Hood realized that she had been careless by not listening to her mother's advice. She promised herself that from now on, she would always obey her elders and never talk to strangers. जंगल के किनारे एक गांव में एक नन्ही बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। गांव के लोग उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड बुलाते थे। जंगल के पार रहने वाली उसकी नानी ने उसके पिछले जन्मदिन पर उसे लाल रंग का हुड वाला कोट उपहार में दिया था। वो जब भी घर से बाहर निकलती वो हुड वाला कोट जरूर पहनती थी, इसलिए उसका नाम लिटिल रेड राइडिंग हुड पड़ गया था। एक दिन उसकी माँ को खबर मिली कि लिटिल रेड राइडिंग हुड की नानी बीमार है। उसने झटपट गर्मा गर्म सूप बनाया और खाना तैयार किया। फिर रेड राइडिंग हुड से कहा कि वो अपनी नानी के घर जाकर उन्हें सूप और खाना देकर आए। लिटिल रेड अपना पसंदीदा लाल रंग का हुड वाला कोट पहनकर नानी के घर जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ एक बास्केट में सूप और खाना रखकर रेड राइडिंग को देते हुए बोली, देखो मेरी बच्ची, यहाँ से निकलकर सीधा नानी के घर जाना। रास्ते में कहीं मत रुकना, किसी अजनबी से बिल्कुल बात मत करना। लिटिल रेड ने माँ को विश्वास दिलाया कि वो सीधे नानी के घर जाएगी और उन्हें सूप और खाना देकर शाम तक वापस आ जाएगी। बास्केट हाथ में उठाए रेड राइडिंग हुड चल पड़ी। उछलते कूदते नाचते गाते वो नानी के घर की ओर चली जा रही थी। रास्ते में जंगल पड़ा। जब वो जंगल पार करने लगी तो झाड़ियों के पीछे छुपे हुए एक दुष्ट भेड़िए की नजर उस पर पड़ गई। उसके मुंह में पानी आ गया।
वो बास्केट में रखे खाने के साथ साथ लिटिल रेड राइडिंग हुड को भी खाने के लिए मचलने लगा। उसने झाड़ियों के पीछे से लिटिल रेड राइडिंग हुड को आवाज दी, और नन्ही बच्ची कहाँ जा रही हो? लिटिल रेड ने पलट कर देखा तो झाड़ियों के पीछे खड़े भेड़िए को देखकर डर गई, लेकिन भेड़िया बहुत चालाक था। वो बड़े ही प्यार से बोला, डरो मत बच्ची, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, बस तुम मुझे बड़ी प्यारी लगी इसलिए तुमसे बात करने का मन हुआ। बताओ तो सही कहाँ जा रही हो? मैं अपनी नानी के घर जा रही हूँ, वो बीमार है, मुझे उनको सूप पिलाना है और खाने का सामान भी देना है। लिटिल रेड राइडिंग हुड बोली। ये सुनने के बाद भेड़िया ने सोचा कि बास्केट में रखे खाने और लिटिल रेड राइडिंग हुड के पहले क्यों ना इसकी बूढ़ी नानी को ही खाया जाए। फिर वो बोला, नन्ही बच्ची, तुम अपनी नानी के लिए खूबसूरत फूल लेकर क्यों नहीं जाती? फूल देखकर तुम्हारी नानी खुश हो जाएंगी। भेड़िया की ये बात राइडिंग हुड को जच गई और वो जंगल से फूल चुनने लगी। इस बीच भेड़िया भागकर उसकी बूढ़ी नानी के घर पहुंच गया और उसे जिंदा ही निगल गया। फिर उसका स्कार्फ बांधकर कंबल ओढ़कर बिस्तर पर लेट गया। इधर फूल चुनकर लिटिल रेड राइडिंग हुड अपनी नानी के घर पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर गई तो देखा उसकी नानी बिस्तर पर लेटी हुई है। लिटिल रेड राइडिंग हुड इस बात से अनजान थी कि भेड़िया उसकी नानी को निकलकर खुद बिस्तर पर लेट गया है। वो बिस्तर के पास गई और बोली, नानी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ, भेड़िया कंबल ओढ़े हुए ही बोला। भेड़िया की भारी आवाज सुनकर लिटिल रेड चौंक गई और बोली, नानी, ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ये इतनी भारी कैसे हो गई? वो इसलिए बेटी, ताकि मैं तुम्हारा अच्छी तरह स्वागत कर सकूं, नानी बना भेड़िया बोला। लिटिल रेड बिस्तर के थोड़ा और करीब गई तो उसे भेड़िया के बड़े कान दिखाई पड़े। उसने पूछा, नानी, तुम्हारे कान इतने बड़े कैसे हो गए? वो इसलिए बेटी, ताकि तुम्हारी आवाज में अच्छे से सुन सकूं। लिटिल रेड उठ के बिस्तर और करीब पहुंची तो उसे भेड़िया का बड़ा सा मुंह दिखाई पड़ा। उसने पूछा, नानी, तुम्हारा मुंह इतना बड़ा कैसे हो गया? वो इसलिए, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं, कहकर भेड़िया ने कंबल फेंककर लिटिल रेड को अच्छे से पकड़ लिया। लिटिल रेड भेड़ियों को देखकर चिल्लाने लगी, लेकिन भेड़िया उससे जिंदा निकल गया। पेट भरकर जाने के बाद भेड़िया बिस्तर पर लेट गया और कुछ देर बाद सो गया। इधर जंगल में एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था। उसने लिटिल रेड हुड के चिल्लाने की आवाज सुन ली थी। वो मदद के लिए वहां पहुंचा तो उसने देखा कि एक भेड़िया खर्राटे मारते हुए बिस्तर पर सो रहा है। भेड़िए का फूला हुआ पेट देखकर उसे शक हुआ। उसने कुल्हाड़ी से उसका पेट चीर दिया। अंदर से लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी बाहर निकल गए। फिर लकड़हारा बाहर से कुछ पत्थर ले आया और उसे भेड़िया के पेट में डाल दिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड और उसकी नानी ने भेड़िया का पेट सिल दिया। फिर वो तीनों छुप गए। कुछ देर बाद भेड़िया उठा। उसे बहुत ही जोरों की प्यास लग रही थी। प्यास बुझाने वो नदी की ओर जाने लगा। लकड़हारा उसका पीछा करने लगा। नदी पहुंचकर भेड़िया जैसे ही पानी पीने के लिए झुका, पत्थरों के बोझ के कारण खुद को संभाल नहीं पाया और नदी में गिरकर डूब गया। लकड़हारे ने जाकर लिटिल रेड हुड और उसकी नानी को भेड़िए के नदी में डूबने की बात बताई। दोनों ने लकड़हारे को धन्यवाद दिया, क्योंकि इसकी वजह से उन दोनों की जान बच पाई थी। लिटिल रेड हुड को एहसास था कि माँ की बात न मानने के कारण आज उसके साथ उसकी नानी को भी जान बन पाई थी। उसने फैसला किया कि वो हमेशा बड़ों का कहना मानेगी।